सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 8.3 के डाउट्स और आज ये चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आपके डाउट्स हैं, शिवांश ही इज हैविंग डाउट इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। ओके, जस्ट अ मिनट। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? डाउट होने चाहिए क्योंकि वो टॉपिक मैंने अभी आपको कराया नहीं है। यस, एंड होमवर्क में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ओके, एंड होमवर्क क्वेश्चन 8। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन में डाउट? एनीवन? एनी डाउट इन एनी ऑफ द अदर होमवर्क? और कोई क्वेश्चंस में? होमवर्क क्वेश्चन 2। ओके, होमवर्क क्वेश्चन 8 आ गया। क्वेश्चन 8 आई सी। ओके, वो आ गया। निष्का, नेक्स्ट। चल, सो नाउ होमवर्क क्वेश्चन 5th एंड 8th सांकेतिक, यस वो आ गया है, इधर ही है। नाउ सो लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चंस फॉर यू। होमवर्क क्वेश्चन 6 में भी डाउट है। मैं अदर डाउट पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो भी नहीं आए वो आप सारे के सारे लिख दोगे। दिस इज नॉट द गुड थिंग। जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग योर मॉड्यूल्स पीडीएफ। होमवर्क क्वेश्चन 6 में श्योर डाउट है? If it is there, we can see. First in class exercise का क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। Let us see this. एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग देखे, गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड किए वहां से। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन 6 ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है तेजस। Shall I show it one more time? Okay. Now, great. So let us see this in class exercise question number 7. Can you see this in class exercise question number 7 on the screen, everyone? Yes, sir. Okay, yes. Rajat, Rohan, Apurva, great. Chal. Okay. So अब ये वाले जो आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करते हैं। वरना वो यू विल आस्क मी सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस suppose you are purchasing any one mobile today, right? Suppose you are purchasing one mobile of 15,000 today. Okay, so if you sell this mobile of 15,000 after 1 year or after 6 months, how much money you will get? Will you get 15,000? Will you get more than 15,000 or will you get less than 15,000? Tell me. Yes, even you can unmute yourself and speak. Yes, Shivans is telling less. So whenever we are purchasing any value, so with the time, whenever we are purchasing any product, right, with amount of time increases, its value decreases, right? So value of this phone, if I sell it after 1 year, maybe I can sell in 10,000. After 2 years, maybe I can sell in 5,000. After 3-4 years, maybe this will be a piece of garbage for me, isn't it? Are you getting my point? Okay. So whenever you are purchasing any value, amount or any product, value of that product is going to decrease as per the time. Here, the value of a machine purchased 2 years ago depreciates at the annual rate of 10%. That means every year it is decreasing by 10%. You know, whenever you are having formula increasing by 10%, decreasing by 10%, how you can find new quantity provided that original quantity is given. If its present value is 97,200, then fine, see here. So it was purchased 2 years ago. So suppose this is present. Okay. Before 1 year, before 2 year. Are you getting my point? Okay, 1 year ago, 2 year ago. So this I'm writing is years. Okay.
Now, so its present value is, now here I'll write value. Present value is 97,200. The value of a machine purchased 2 years ago depreciated at the rate of 10%. If its present value is 97,200, its value after 3 years, its value when it was purchased. 1, 2, 3. I have to find its value after 3 years and at that time when it was purchased. So we'll see this one by one. Now understand this table carefully, students. Here, you have to find its value. There are two cases, its value after 3 years and its value when it was purchased, right? So let us go after 3 years. This is present year, right? So this will be after 1 year or not? This gap is after 1 year. Are you getting my point? This will be after 2 years. And isn't it this will be after 3 years? Please give me some response. Okay, because this will be after 3 years from this present moment. It will be after 3 years. You can tell me yes if you agree. Right. Next. Yes, sir. Right. Okay. Now its value is decreasing at the rate of 10% per annum. Okay, 10% per annum से वो decrease हो रही है. So अगर 97,200 से आप इस तरफ जाओगे, so can I say it is decreasing? Decreasing means minus 10%. Okay, or can I say like this symbol, it is decreasing by 10%. Same here, decreasing by 10%. Same here, decreasing by 10%. Yes or no? Madhusudan? Okay, are you paying attention? Okay, great. Yes, sir. So just students make sure one thing in my class, right? आपने अभी मेरे ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किए तो आपके वीडियो ऑन रखा रहा हूँ, आपके ऑफलाइन क्लास का फील है इसलिए. तो मेरे क्लास में मैं जनरल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको स्ट्रेट बैठना है. सो ऑलवेज सिट स्ट्रेट, योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट. ओके, और ऐसा सपोर्ट कभी नहीं लेना है. मैं क्या आपको ऐसे बैठ के पढ़ाता हूँ? ओके, ये सपोर्ट आपको कभी नहीं लेना है. कोई लोग ऐसे बैठते रहते हैं, ऐसे बैठते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं. यू शुड सिट स्ट्रेट. इसके पीछे दो लॉजिक हैं. पहले आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन से, राइट? तो आप जो भी पढ़ोगे, इवन आप जब भी पढ़ाई करते हो, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, मेक श्योर यू आर सिटिंग स्ट्रेट. तो वो सारी चीजें डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाएंगी. ओके, सेकंड थिंग, आप अटेंटिव रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी. बाकी आप ऐसे बैठोगे तो आपको नींद आती है. इजंट इट अपूर्वा? एम आई राइट? राइट. Okay, so Safwan is here, Rohan is here. चल, now let us resume. So अभी आपका 10% every year decrease हो रहा है. अब इसको find करने के लिए आपके पास दो ways हैं students, समझना. So if I have to find value of machine after 3 years, value of machine after 3 years, understand this carefully. Can I say this value of machine after 3 years will be new quantity? Isn't it? This will be your new quantity and this will be your old quantity. You can tell me yes if you agree. Isn't it? That is new quantity and this is old quantity. Everyone? Yes, sir. So you know when it is by decreasing by any X percentage, then what is the relation between new quantity and old quantity? New quantity is equal to 1 minus X by 100 into old quantity or not? हाँ या ना? पर वो हमने बस एक ही बार देखा था, वहां पे हमारा पर एनम वाला कोई कंसेप्ट नहीं था. राइट, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखी थी. न्यू क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 100 इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी.
बट नाउ ये आपका कितनी बार डिक्रीज हो रहा है? Here 10% is decreasing at the rate per annum. ये per annum आपका 10% decrease हो रहा है. How many years you are having total here? 3 years or not? Everyone. So we have to write this 1 minus x by 100 3 times. That is 1 minus x by 100 to the power n or not? 1 minus x by 100 to the power 3. Okay. So here exactly value of machine after 3 years will become 1 minus 10 by 100 to the power 3 into 97,200. Yes, Shivansh, I am coming to their point. Okay, उसी को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अब आपकी कंपेयर करूंगा. चलो, अब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही केस हो गया. समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका चीज क्या होता था स्टूडेंट्स? एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट ऐड होता था एंड the amount at the end of every year it was acting as principal for the next year. हाँ या ना? यहाँ पे आपका अमाउंट ये डिक्रीज हो रहा है. ये सपोज प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल डिक्रीज होके इधर अमाउंट हो रहा है. अब ये अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, वापस डिक्रीज होके ये अमाउंट हो रहा है. अब ये आपका नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल होगा. So this is same as your compound interest, but here what is the difference? Your principal, instead of we are adding interest, we are decreasing interest. 1 minus r by 100 to the power n. Okay. आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या थी? 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन. यहां मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर एन. या अगर आप इसमें 1 प्लस आर बाय 100 यूज कर रहे हो, so you have to take r as negative. Why negative? Because it is being decreased over here. यहाँ पे आपका 10% डिक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर एवरीवन? तो आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस. आइदर आप ये याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं. आई विल सजेस्ट दिस compound interest because what we are seeing now, these questions are of your application of compound interest, where you can find this application of compound interest. जब भी आपकी एवरी ईयर कोई अमाउंट इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, वो टाइम पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं. नाउ इट इज अप टू यू. Either you are taking rate as 10% per annum positive, here you have to use negative sign. If you are taking here 1 plus r, at that time you have to take r as negative. So tell me what will be easier for you? r को -10 लेना easier होगा कि -r लेके r को 10 ले ले? Everyone? You can unmute yourself and speak. Yes, Adarsh, tell me. -r. Okay, Samarth is telling -r. Okay, Rohan is telling directly -10. Tejas is telling -r. जो आपको ठीक लगे, right? I am giving you both the options. So let us put all the values. यहाँ पे आपका प्रिंसिपल होगा ओरिजिनल वैल्यू. ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या है? 97,200 इन दिस केस. यस, शिवांश इज टेलिंग नॉट श्योर. नॉट श्योर मतलब ये क्या इसमें पता नहीं चला? किसी को भी पता नहीं चला तो बोलो. आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. इफ इट इज क्लियर वी कैन प्रोसीड. 1 minus 10 by 100 to the power n. n is nothing but your 3. Is it clear? 1, 2, 3. Let us see next. Okay, let me repeat one more time. Wait. एक बार मैं क्वेश्चन खत्म कर लेता हूं, फिर एक बार आपको पूरा रिपीट कराऊंगा. ओके, सो दिस इज 97,200 इनटू, ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 1 minus 1 by 10 और नॉट. ओके, so this is 10 into 1 10, 10 minus 1 9 by 10 whole cube. Please give me some response, isn't it? ये आपका 9 by 10 whole cube हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? Who will tell me quickly? 9 by 10 whole cube को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जस्ट 9 by 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे ना, राइट? So this will be 97,200 into 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10. Yes, yeah, directly 729 by 1000. It all depends on you. Okay, next. Safwan, are you using virtual background? Is equal to, ये आपका 0 0 cancel, 0 0 cancel. Now बस अब यहां से आपको 972 into 999, राइट? 999
9 इंटू 9 इंटू 9 वो आपका क्या होता है 729. So 972 into 729 divide by 10. Do it quickly and tell me your answer. Yes, रजत पता चल रहा है? Do it quickly this calculation and tell me 972 into 729 क्या होगा, या अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको सिखाता हूँ. यस निष्का आज पेन से लिख रही हो, गुड. पीयूष, पीयूष सिट स्ट्रेट, ऐसे सपोर्ट नहीं लेना है. अरे एंड नेक्स्ट टाइम क्या करना, बुक्स का बंच बना लेना, उसके ऊपर मोबाइल रखना है ना, तो आपको स्ट्रेट रहेगा, आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा. राइट, आज के लिए ऐसा कंटिन्यू करो, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना. पता चल रहा है ना पीयूष? ओके. ना पीयूष यू कैन टेल मी यस. हाँ अभी थोड़ा कंफर्टेबल है. चल quickly. Yes, Rohan got the answer. 70,858.8. 70,858.8. Apurva also got the answer. Same. Right, divide by 10. Samarth also got the same. तो ये आपके स्कूटर या मशीन की वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया गया है मशीन, सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ मशीन. इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, so this will be value of machine after 3 years. Okay, now let me explain you this one more time, फिर मैं इसके second part पे जाऊंगा. Right, so try to understand this. Just a minute. Now see here. In the question, it is given that the value of a machine purchased 2 years ago, there is one machine, it was purchased 2 years ago, depreciates at the annual rate of 10%. वो आपकी depreciate हो रही है at the annual rate of 10%. 10% के रेट से उसका depreciation हो रहा है. It is depreciated at the rate of 10%. Next, its present value is 97,200. Its present value is 97,200. Find its value after 3 years. 3 ईयर के बाद आपकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज होके. एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड. जब आपने उसको परचेज किया था तब उसकी वैल्यू क्या होगी. तो अभी हमने सेकंड पार्ट नहीं किया. नाउ ऑलरेडी वी हैव डन ओनली एंड ओनली फर्स्ट पार्ट. नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली हियर. अगर मैं आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ू, इफ आई अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डिक्रीजिंग, सो इनिशियली द price or value of the machine was 97,200. After 1 year, it decreased by 10%. So I can get a new quantity as original quantity into 1 minus 10 by 100, isn't it? And after getting this new quantity, again I have to multiply for next year 1 minus 10 by 100 one more time. And for again next year, I have to multiply by 1 minus 10 by 100 one more time. So for 3 years, 1, 2, and 3, for this decreasing by 10%, I am going to multiply 1 minus 10 by 100 to the power 3. 1 minus 10 by 100 into 1 minus 10 by 100 into 1 minus 10 by 100. If it was, आपको ये पूछा गया होता कि भाई 4 साल के बाद फाइंड करो after 4 years, so we could have multiplied 1 minus 10 by 100 to the power 4 or not? 1 minus 10 by 100 4 times. Are you getting my point, everyone? So this is the one such way. इस तरीके से आप जा सकते हो. और this is nothing but your compounding only. But compounding में हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऐड कर देते. Here instead of adding, we are decreasing it. So since we are decreasing it, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस की जगह बस आपको लेना है माइनस. So either you can apply amount or the new quantity, the change in quantity when rate of change in terms of decrease is given or decreasing percentage is given, वो आप 3 बार 4 बार 5 बार अप्लाई कर सकते हो as per the question, or you can apply compound interest formula. Both the approaches are good. क्या अब ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? राइट, सिंस आपने बोला था सर आप रिपीट करना, क्या ये चीज अभी क्लियर हुई? ओके, यस. सो ग्रेट. चल नाउ बस फिर सारी वैल्यू रखी और वहां के पे आपका सिंप्लीफिकेशन है 70,858.8. नेक्स्ट, अब
प्रीवियस जाते हैं। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, प्रीवियस हम कैसे फाइंड करेंगे? जो आपको ये उसका हो जाएगा बिफोर 1 ईयर, ओके, एंड ये आपका हो जाएगा बिफोर 2 ईयर्स। प्रीवियस के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ नहीं नहीं, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग जो स्टूडेंट्स हर बार मिस्टेक करते हैं कि सर हम राइट साइड पे जा रहे थे वो डिक्रीजिंग बाय 10% था, अब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इंक्रीजिंग बाय 10% ले लेंगे। नो, नॉट एट ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग दैट कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मैं इंक्रीजिंग बाय 10% ले लूंगा? इंक्रीजिंग बाय 10%, इंक्रीजिंग बाय 10%। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग दिस that if I am going to left side I'll do this increasing by 10%? Raise your hand. Tell me. निखिला, पता चल रहा है ना? Yes, sir. Great. Everyone, tell me. Increasing by 10%. Raise your hand. How many of you are agree with sir? मुझे increasing by 10% लेना है. Okay. Yes, Sanketi, Apurva, tell me. Okay, so Adarsh, Sanketi, okay. क्या एक चीज आपको याद है स्टूडेंट्स? आप डिक्रीजिंग बाय 10% कर रहे हो और इंक्रीजिंग बाय 10% कर रहे हो, वो दोनों सेम होता है कि अलग होता है? आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला मैंने एक पार्ट दिखाया था, टेल मी, सी है। अगर कोई एक क्वांटिटी आप 10% से इंक्रीज कर रहे हो, उसी को वापस आप 10% से डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या वो दोनों चीजें सेम होंगी कि अलग होंगी? मैंने आपको समझाया था, टेल मी। क्योंकि बेस आपका चेंज हो जाएगा ना एवरीवन, सी। यस, इट विल बी डिफरेंट। हाँ, अपूर्वा ने अभी बोला डिफरेंट। सी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कराया था, राइट? सो परसेंटेज इंक्रीज में हमारा था चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू ओरिजिनल माइनस न्यू क्वांटिटी। ओके, तो हियर एक मिनट, क्या मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया था, आपके बैच में कराया था या वो मुझे फटाफट याद दिलाओ, आपके बैच में किया था हमने? जितना मुझे याद है किया तो था, टेल मी। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, गॉट इट, दिस सी है। ये आपका एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोला था 5 बार लिखना फॉर्मूला बुक में। नाउ पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन में आपके पास क्या था? राकेश इनकम इज 25% मोर देन ऑफ रोहन, व्हाट परसेंट इनकम इज लेस देन ऑफ राकेश इनकम? ये याद है एवरीवन क्वेश्चन? लेट मी रिपीट यू दिस क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया था कि इफ इट इज गिवन टू यू दैट Rakesh income is 25% more than Rohan's income. Yawning is not allowed in my class. Yawning allowed नहीं है. Okay, Shivansh. So Rakesh income is 25% more than of Rohan. Rakesh की income Rohan की income से 25% ज्यादा है. So what percent is Rohan's income less than Rakesh income? तो जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो आपने मुझे क्या आंसर दिया था? 25% ओनली। आपने बोला था सर कि अगर राकेश की इनकम 25% ज्यादा है तो रोहन की इनकम 25% कम होगी। Then I have explained you that no, it is different, and our answer was 20%. Why? Because जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, डिफरेंस दोनों का सेम होगा। सी, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमें मिला था अगर रोहन की इनकम x है तो राकेश की इनकम 5x/4 होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज में डिफरेंस होता है, इंक्रीज ये न्यू माइनस ओल्ड 5x/4 माइनस x, तो वो डिफरेंस ऑलवेज आपका सेम होगा। बट फॉर परसेंटेज इंक्रीज व्हाट इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी? ओरिजिनल क्वांटिटी इज x. But for percentage decrease, what is your original quantity? Original quantity is 5x/4. That's why percentage increase is different, because for percentage increase, it is with respect to Rohan's income. Percentage increase is 25%. Percentage decrease is different because it is with respect to Rakesh income, जो ज्यादा है इसलिए वो 20% हो जाएगा। Is it clear everyone? Okay, yes सांकेती, now अभी सबको clear हुआ? तो इसीलिए हम वो जो आप yes डिनोमिनेटर चेंज होता है सफन, राइट? तो जो राइट साइड में जाके हम -10% करते थे, क्या वो लेफ्ट साइड में +10% होगा? नहीं, क्योंकि वो जो 10% आपका होता था वो किस रिस्पेक्ट से होता था, समझना। यस, बेस जिसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड करें वो चेंज होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये 10% आपका डिक्रीज हो रहा है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। ये प्रीवियस के रिस्पेक्ट में आपका 10% डिक्रीज हो रहा है, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में 10% डिक्रीज हो रहा है, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में 10% डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू के कंपेयर में 10% इंक्रीज होगा।
नेवर। तो इनिशियली जो आपने लिया था, जस्ट यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन ओनली। समझना, मैं आपको डायरेक्ट भी दे सकता था कि स्टूडेंट्स बस इसी वे से करो, आपका हो जाएगा, बट ये पूरा समझाना जरूरी है, भले उसमें टाइम गया, बट ये आपको पता चलेगा, राइट? इट इज डिक्रीजिंग बाय 10%, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बाय 10%। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या भी ये चीज क्लियर हुई? ओके तो अब हम इनिशियल क्वांटिटी को पहले कुछ एज्यूम कर देंगे। सपोज आवर इनिशियल क्वांटिटी इज x और अमाउंट बिफोर 2 years is x, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब नाउ x into 1 minus 10 by 100 whole square, our new quantity will become 97,200। ओके तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी इट। So let value of machine before 2 years was x। 2 साल पहले x अमाउंट था। So now its present value, therefore present value of machine will be equal to x into 1 minus 10 by 100 to the power 2। क्योंकि 2 साल आप आ रहे हो, आप आइदर डायरेक्ट लिख सकते हो, आइदर आप p 1 plus r by 100 to the power n formula। Now present value is 97,200। You have to find value of x। 97,200 is equal to x। Now 1 minus 1 by 10 whole square. 10 into 1 10, 10 minus 1 9 by 10. So 97,200 is equal to x into 9 by 10 into 9 by 10. So x is equal to 97200 into 10 into 10 divided by 9 into 9। चलो क्या मैं पहले 9 से डिवाइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। Can I again divide by 9? What is the key to check कि आप 9 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं? तेजस, सी स्ट्रेट। ओके आप 9 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं? कैसे चेक करोगे एवरीवन? जस्ट उसका सम, राइट? द सम ऑफ डिजिट शुड बी 9। प्रांजन पता चल रहा है? सो 9 1 जा 9, इधर आपका हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, सो दिस इज 1200। So x is equal to 1200 into 10, 12,000 into 10, 1,20,000। तो समझ रहे हो, मशीन आपने ली थी 1,20,000 में, 2 साल के बाद उसकी प्राइस हो गई 97,200 एंड अगेन आफ्टर यू विल गो बियॉन्ड 3 years वो आपकी 70,000 हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग। ओके इसी के ऊपर आपका फिनेंस में एक अलग बुक है, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें एसेट और लायबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे से दिया गया है। आप फ्यूचर में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि आप कोई भी चीज अगर खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। क्या आप मुझे कोई एक एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें आप कोई चीज खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू बढ़ेगी बियॉन्ड टाइम? यस शिवांश, गोल्ड। हाँ या ना? कि गोल्ड ऐसी चीज है जिसको आप खरीदोगे उसकी वैल्यू जनरली बढ़ती रहती है। हाँ बीच में कम कम ज्यादा होगी, यस सिल्वर, यस समर, बीच में कम ज्यादा होगी, यस पेट्रोल, बट पेट्रोल वही हम खरीद के रख नहीं सकते। ओके तो वो हमें यूज करते रहना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। सो द ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है इट इज कॉल्ड एसेट, जिसकी वैल्यू बढ़ने नहीं वाली इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ओके दिस इज द थिंग। Is it clear everyone? Question number 7। Next question number 8। तो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अभी जो आप नॉलेज ले रहे हो, अभी जो मैं सब आपको पढ़ा रहा हूं, इज इट योर एसेट और लायबिलिटी? टेल मी, इज इट योर एसेट और लायबिलिटी? रजत, अंजलि मतलब उनका नाम होगा। ओके रोहन इज टेलिंग एसेट, प्रांजन इज टेलिंग लायबिलिटी, समर्थ इज टेलिंग लायबिलिटी। श्योर? इट डिपेंड्स। ओके वो आप पे डिपेंड करेगा। अब हाँ यस उसकी वैल्यू क्या हो रही है? नॉलेज इज ट्रू वेल्थ, राइट? इसकी वैल्यू ऑलवेज, अभी आप जितना यहाँ पे सीख रहे हो स्कूल में, अवंती में मेहनत करके, ये सारी वैल्यू आपको फ्यूचर में काम आएगी, राइट? जिससे आप और बहुत सारी चीजें लाइफ में गेन करोगे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
Now let us see question number 8. This is also your one of other application of compound interest. Again question number 8 of in class exercise. वो पहला वाला मैंने पहला एप्लीकेशन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा. नाउ क्वेश्चन 8 से आपके लिए जल्दी जल्दी होने लगेगा. चलो, who will read this question quickly? This is on the screen. Who will read this question? Yes, प्रांजन, क्या आप पढ़ोगे इसे? प्रांजन जाग रहे हो? Can you unmute yourself? Quickly, jaldi. 24,000 blood donors were registered with Red Cross at Kolkata. Okay. The number of donors increased at the rate of 5% every 6 months. Okay. Find the time period at the end of which the total number of blood donors becomes 27,783. Okay. Okay, thank you प्रांजन. See here students, तो ब्लड डोनर्स हैं टोटल. एक रेड क्रॉस सोसाइटी है कोलकाता में. तो आपको पता हो कि ब्लड सब अलग अलग ये सोसाइटी होती है. लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई. तो ये सारे जो सोसाइटीज होते हैं ये सोसाइटी में थोड़े अच्छे काम करते हैं. ओके, ये जो क्लब है, जैसे उसमें से एक अच्छा काम हो गया ब्लड डोनेशन के लिए सबको मोटिवेट करना. अलग अलग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं कि चलो अभी दशहरा आ गया, दिवाली आ गया, लेट अस डू समथिंग. यस, वेलफेयर, ब्लड डोनेशन. So 24,000 blood donors were registered with Red Cross at Kolkata. Now the number of donors increased at the rate of 5% every 6 months. अब ये कब आपका इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? Every 6 months or not? ऊपर वाले केस में आपका क्या था? 10% every year डिक्रीज हो रही है आपकी अमाउंट. यहाँ पे every 6 months से इंक्रीज हो रहा है. So find the time period at the end of which the total number of blood donors becomes 27,783. Yes. So this is your semi annually. चलो मैं इनिशियल केस फाइंड कर रहा हूं कि अगर मैं पहले आपका टाइम लिखूं. ओके, सो इनिशियली हाउ मेनी ब्लड डोनर्स वेर देयर? टेल मी. यस, क्विकली रिस्पांस देना पड़ेगा. सर 24,000. वेरी गुड, 24,000 अप्रूव, राइट. चलो अब आपको एवरी 6 मंथ्स मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? हाफ ईयर और नॉट? ओके, एवरी हाफ ईयर वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं. एवरी हाफ ईयर इट इज बीइंग इंक्रीज. एवरी हाफ ईयर इंक्रीज हो रहा है. आपको कितने टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा है मुझे पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, राइट. इन द एंड ऑफ फ्यू ईयर्स, द एंड ऑफ सपोज n ईयर्स, वो आपके इंक्रीज होके हो रहे हैं. एवरी ईयर वो कितना इंक्रीज हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग बाय 5%. नॉट एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स. एवरी 6 मंथ्स वो 5% आपके इंक्रीज हो रहे हैं. सो फाइनली यहाँ पे आपका इधर आ जाएगा 5% पर सेमी 5% एवरी 6 मंथ्स. अब ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, डोनर्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 मंथ्स. तो यहाँ पे जो रेट है आपका 5%, वो पर एनम है या पर 6 मंथ है? हाँ या ना? It is 5% per half year or not? Tell me, everyone. Please give me some response. ये क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हियर 5% पर एनम और पर 6 मंथ्स. वो आप मुझे बताओ. Isn't it per 6 month? Okay. So here your rate of interest is 5% per 6 months, right? Yes. क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला लिखूंगा वहां पे आपको ज्यादा पता चलेगी. अब कितने साल के बाद, राइट, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट इज बिकमिंग 27,783, दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो वी विल अज्यूम फर्स्ट ईयर दैट लेट आफ्टर n years number of blood donors will be 27,783. ओके, आपके 27,783 हो रहे हैं. चलो, कौन सी फॉर्मूला अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स? क्या मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सेमी एनुअली वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? एवरीवन? ओके, यस सर. अकेला ने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दी चैट बॉक्स में. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/200 टू द पावर n और 2n. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका r क्या था और n क्या था? पीयूष स्ट्रेट, ये सपोर्ट नहीं लेना है. पीयूष,
Okay, yes, very good, very good. So tell me students, R क्या था और N क्या था यहाँ पे? Quickly. R is rate of interest per annum? नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए उधर में पर सेमी एनम पे 6. नहीं. R was what? It was rate of interest per annum or not? Okay, isn't it rate of interest per annum? Everyone. N क्या था? N number of years था. Quickly. Isn't it n number of years and R is rate of interest per annum? Gauss है ना? Gauss नींद आ रही है? नो सर. हाँ, ग्रेट. सो रेट आपका पर एनम था, तो वहां पे हम r बाई 2 क्यों कर रहे थे स्टूडेंट्स? राइट, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाई थी r बाई 2 क्यों कर रहे थे हम? ओके, अपूर्वा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने जस्ट अभी आपकी फॉर्मूला पूछी कि व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ सेमी एनम. So or when compound interest is compounded semi-annually, amount equal to principal 1 plus r by 200 to the power 2n. वहां पे हम r क्या लेते थे और n क्या लेते थे? r was rate of interest per annum or not? क्वेश्चन में आपको r rate of interest per annum दिया गया था और n number of years दिए गए थे. फिर हमने उसको सेमी एनम में कन्वर्ट किया था कि अगर 1 ईयर का आपका रेट r है तो हाफ ईयर का रेट क्या हो जाएगा? r by 2. एवरीवन, if you are having rate of interest r% for 1 year, so for half year it will be r by 2. everyone, isn't it? but यहाँ पे जो आपको 5% दिया है, isn't it your value of r और r by 2? अब जो यहाँ पे आपको 5% दिया है, tell me, it is your r और r by 2? पता नहीं चल रहा है? tell me. अगर नहीं पता चल रहा है, I'll repeat. समझना. Okay, so r was compound interest at rate of interest per annum and r by 2 was rate of interest per semi annum, you can say. Okay, or per half yearly or half yearly rate of interest per semi annum. So here 5% is r or r by 2? Here rate is 5% per annum, right? 5% per 6 months. So it is r by 2 or not? Tell me. Can I take r by 2 equal to 5? Is it clear? You can tell me yes. If it is not, you can tell me no. Sanketi, clear? Yes, sir. Great. चलो, so r by 2 5 है. Okay, Tejas is telling no. Tejas, कहाँ पे आपको डाउट है? Can you tell me so that I can explain from that point? और किस किस स्टूडेंट्स को डाउट है? He or she can raise your hand. जिसको भी डाउट हो, r by 2 क्यों लिया हमने 5 को, r क्यों नहीं लिया? ये चीज क्लियर हुई? मधुसूदन, आपको क्लियर? ओके, यस सर. यस. बाकी सबको? निकिला क्लियर? ओके. Yes, sir. Now see here, let me explain this one more time. समझो, जब हमने ये फॉर्मूला लिखी थी स्टूडेंट्स, तब ये फॉर्मूला मैं आपको पहले फॉर्मूला बुक में दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा शायद ज्यादा ख्याल आएगा. सो दिस फॉर्मूला वी हैव सीन हियर. मैंने आपको ये फॉर्मूला के साथ बोला था, यू हैव टू टेक आर हियर इन परसेंट पर एनम. आर परसेंट पर एनम, तेजस ये याद है? ये फॉर्मूला में मैंने बोला था आर इज आर परसेंट पर एनम और एन आपको लेना है नंबर ऑफ ईयर्स. फिर मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था कि इधर हम r by 2 क्यों ले रहे हैं? फॉर 1 ईयर इफ योर रेट इज r, फॉर हाफ ईयर व्हाट विल बी योर रेट? r by 2 और नॉट? फॉर हाफ ईयर व्हाट विल बी योर रेट? r by 2. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, सो हियर द रेट इज गिवन टू यू फॉर 1 ईयर और हाफ ईयर. The rate which is given to you, it is for 1 year or half year. 5% is given for 1 year or half year? Half year. Half year, sir. Right. For 1 year rate is r, for half year rate is r by 2. So now tell me, is it अभी आपको जो 5 दिया है वो r होगा या r by 2 होगा? तेजस, r by 2 or not? Yes, sir. R by 2. Great. See स्टूडेंट, सीरियस होके मत बैठो. यू कैन थोड़ा स्माइल भी कर सकते हो, राइट? जैसे पता चले, हाँ चलो पता चला r by 2 5%. सो हंसते रहोगे, खुश रहोगे तो अपने आप सारी चीजें आएंगी. सीरियस रहोगे तो फिर पढ़ाई बोरिंग ही लगेगी. सो प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आपकी इनिशियल अमाउंट है 24,000. आपको नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करने हैं. सो इनिशियल इज 24,000. 1 प्लस r की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? r by 2 इज 5. सो r इज इक्वल टू 10 और नॉट? एवरीवन, yes, Samarth is telling sir if r by 2 is 5 then okay, got it. So r आपका हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 200 टू द पावर 2n. n आपको फाइंड करना है. अमाउंट इज 27,783.
27,783। चलो सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे आप एक नई चीज सीखोगे कि कैसे n निकालना है। ओके, जो शायद श्रीवांश ने उसने पूछा था। जेलिन, आर यू देयर? ओके, सो देयरफॉर 27,783 डिवाइड बाय 24,000 इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे हम 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका 1/20 रहेगा, अभी के लिए एज इट इज लिख रहा हूँ, टू द पावर 2n, isn't it everyone? So what will be LCM here? Who will tell me this LCM? Yes, Rohan, tell me this LCM. Sir, 20. 20. So आप पूरा फ्रैक्शन अब क्या हो जाएगा रोहन? 21/20. Very good. 20 into 1 20 plus 1, that is 21/20 whole to the power 2n. Okay. अब आपके पास जो पहले आप मुझे बताओ 21 और 20 में और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आगे? क्या आप 21 और 20 में और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो? एनी कॉमन फैक्टर्स? 21 is 7 3s are 20, 20 is 5 4s are 20, नो कॉमन फैक्टर्स, राइट? अब आपके पास जो लेफ्ट साइड में बचा है, अब आपको लेफ्ट साइड को 21/20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपको लेफ्ट साइड में जो भी बचा है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको आप क्या लिख सकते हो उसको सोचो। ओके, सो 27,783 डिवाइड बाय 24,000, व्हाट इज कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल ऑफ देम? 27,783 एंड 24,000। 4 + 2 6, डिनोमिनेटर को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। न्यूमिनेटर को देखो, 7 + 2 14, 7 + 3 8, 7 + 3 10, sorry. So 10 and 14 24, 24 and 8, isn't it 32? क्या आप उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं? Tell me. Sure? 32 आया ना? 32 is not in the table of 3, कि मेरी कोई गलती हुई? 7 + 7 14 and 2 16, 16 8 24, नहीं 27 आएगा, 27 my mistake, right? So let us divide this by 3. मैं इसको पहले साइड पे इधर कर रहा हूँ, वहां पे जगह नहीं है। Yes, 27,783 डिवाइड बाय 24,000, जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। So if I divide by 3, 3 into 8, okay, 8,000. 3 9s are 27, 3 2s are 6, 28, 3 9s are 27, 13, वापस कोई गलती हुई, 3 9s are 27, okay, 3 2s are 6, 1 only 18, 6 3s are 18 and 3 1s are 3. So it is your 9261/8000, yes or no? Okay. Now 9261/8000 को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, बट वो समझने के लिए इधर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। 9261 डिवाइड बाय 8000, it is equal to 21/20 whole to the power 2n. Now can you tell me what is the relation between 8000 and 20? 20 की कितनी पावर करोगे तो 8000 होगा? Isn't it 20 cube? 8,000 is 20 cube or not? Right. Jalin, are you there? Jalin? Okay. So 8,000 equal to 20 cube. Next. अब जो आपका 9261 है, just check, अगर ये 20 cube हो रहा है तो 9261 आपका 21 cube होगा या नहीं? 9261 definitely will be your 21 cube. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. Tell me. In this chapter 21 cube हमारा बहुत बार हुआ है. Let me show you that. कहाँ पे हमारा हुआ है? 9261, ये देखो इधर 21 cube, 21 into 21 441, 441 into 21, what it will give you? 9261. Yes or no? वापिस करने की जरूरत नहीं। ये चैप्टर में आप एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, 21 क्यूब मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, तो 21 क्यूब का आप याद रख लो अलग से। सी हियर, इधर भी 21 into 21 into 21, 9261. सो ये 21 into 21 into 21 आपको बहुत बार काम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 21 into 21 into 21, 21 क्यूब आपका 9261 होगा। इसे आप फॉर्मूला बुक में याद रख ही लो। ओके, 5 बार लिखने की जरूरत नहीं, इसके क्वेश्चंस इतने हैं कि हो जाएगा। Yes, Shivansh is asking, sir, how it is repeated means? Shivansh, tell me. मुझे आपका क्वेश्चन पता नहीं चला, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। How it is repeated means? Sir, that why it is coming many times 21 cube? Coming many times means 9261 आपका 21 क्यूब क्यों हो रहा है, आप ये पूछ रहे हो ना? No sir, in questions why it is coming so frequently? Oh, this is what's वो frequent, अच्छा 21 आपका frequently क्यों आ रहा है? This is the case, right? ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये exactly एक common observation है for this chapter। इसमें इसके हाँ, this is just a coincidence, क्योंकि जनरली ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कई बार आपका ये अगर आपका ये जैसे यहाँ पे 10/200 था, राइट?
तो अगर ये आपका 10/200 की जगह 5/100 होता, तो जनरली ये चीज रेट के आ रही है कि अगर रेट आपका 5% दिया जा रहा है पर एनम, या फिर आपको दिया जा रहा है 10% पर एनम एंड यू हैव टू कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या आपको दे देंगे 20% यू हैव टू कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सारे केस में आपका यही रेशियो आ रहा है. सो जनरली ये 5, 10, 20 आपके कॉमन रिपीटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए 21/20 आपका बहुत बार आ रहा है. दिस इज द थिंग. सो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. जैसे आप देखोगे, आपने सर्कल का सरकमफरेंस और एरिया सब पढ़े हो, पाई के बारे में पढ़े हो क्लास 7 तक, 2πr पाई आर स्क्वायर समथिंग. यस. तो वहां पे आपने देखा होगा, तो रेडियस और वो सारी चीजें कई बार आपके 7 के मल्टीपल में आती थी. जैसे यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पाई के मल्टीपल में आता है, वहां पे क्यों आपका 7 के मल्टीपल में आता था? क्योंकि अगर आप पाई 22/7 लिखते हो तो 7 कैंसिल हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन कि आपको सिंप्लिसिटी हो. दैट्स इट. सो now can I write this 9261 as 21 cube and 8000 as 20? So this is 21/20 whole cube is equal to 21/20 to the power 2n. Is it clear everyone? Okay, 21/20 to the power 3 equal to 21/20 to the power 2n. चलो यहां से कंपेयर करके आप 2n की कोई मुझे वैल्यू दे सकते हो? टेल मी. 21/20 whole to the power 3, 21/20 whole to the power 2n. Who all terms are same, base is same, so their power should be also same. Yes. So 2n is equal to 3 or not? So therefore 3 is equal to 2n. If 3 is equal to 2n, can I say n equal to 3/2? So what will be your answer? आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने टाइम बाद ब्लड डोनर्स 27,783 हो जाएंगे? So after 3/2 years. n is your years or not? Okay, so after 3/2 years. Everyone understood this question? Isn't it a good question? Beautiful question, isn't it? So after 3/2 years, number of blood donors will be 27,783. आपको ये वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेगा. यॉर्निंग इज नॉट अलाउड, निकिला. राइट. So now 3/2 years, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटीजर when 1/2 years. Okay, ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. Is it clear? Everyone understood? Okay. पता चला पूर्वा? Great. Now अब आपके होमवर्क के क्वेश्चंस में जो डाउट है 2, 4, 5, 8, लेट मी शो यू क्विकली. ये आपने कर दिए तो वो आपके इजीली हो जाएंगे. 2, 4, 5, 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. तो ये संडे ये चैप्टर की मैं आपकी ऑनलाइन एग्जाम रख दूं, और कोई सब्जेक्ट में आपकी ऑनलाइन एग्जाम है ये संडे? ओके, तो ये संडे आपकी ये चैप्टर की ऑनलाइन एग्जाम रहेगी. आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों कम है? ओनली 18, 17 पार्टिसिपेंट्स. आज तो अटेंडेंस. ओके, दिस संडे HYE. अच्छा, इसी संडे से आपका S7 शुरू हो रहा है क्या? न्यू शेड्यूल विष्णु सर ने डाला था ना ग्रुप में आपका. ठीक है, हाँ, तो बस तो नो इश्यू. यस, हाँ, बस तो दिस संडे से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम. ओके, हाँ, मैथ्स का पोर्शन चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8. ओके, मैथ्स में आपका चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 रहेगा. नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. अ स्कूटर वाज बॉट for rupees 40,000. Its value depreciated at the rate of 10% per annum. Find its value after 3 years. So can you do this like that machine question? क्या हो जाएगा its value? 40,000 into 1 minus 10/100 to the power 3 or not? Okay, तो इसलिए मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो. सेम क्वेश्चन. Now then 4, 5, 8. Okay, let me import questions 4 and 5. वो दोनों साथ में दिखा देता हूँ. क्वेश्चन 5 आपके इन क्लास एक्सरसाइज वाला सेम क्वेश्चन है ना? डिट्टो सेम.
इन क्लास एक्सरसाइज का जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली वाला कंपैरिजन, उस मेथड से आपने नहीं किया, उस मेथड से करोगे तो आ ही जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 4 पहले, निशा ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹64,000 अगेंस्ट हर फिक्स डिपॉजिट, राइट, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर निशा को इतना 64,000 लोन मिला है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 25 पैसे पर 10 रुपीज पर एनम, ये बस आपका एक नया है। ओके, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 3 years। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, क्योंकि आपका पर एनम है। सो 64,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा एंड 3 years आपका n हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, हाउ वी कैन फाइंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज। परसेंटेज आप कैसे फाइंड कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू 100 और नॉट। आपको क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25 पैसे पर 10 रुपी पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम में ही होता है, तो पर एनम को हम साइड पे रखेंगे, पर एनम वी विल इग्नोर। 25 पैसे पर 10 रुपी। सो इफ योर अमाउंट प्रिंसिपल इज 10 रुपीज, राइट, आपके इंटरेस्ट आप कितना ले रहे हो, 25 पैसा इंटरेस्ट, आपको 25 पैसा वो लोग दे रहे हैं 10 रुपीज में। ये चीज पता चल रही है एवरीवन? इफ योर प्रिंसिपल इज 10 रुपीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल इज 10 रुपीज, दे आर गिविंग यू इंटरेस्ट एट 25 पैसे। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? अब ये दोनों चीजें आपके सेम यूनिट में होनी चाहिए। आइदर आप रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करो या पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करो। किसको किस में कन्वर्ट करोगे, टेल मी, कैन यू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा एवरीवन? 10 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 10 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, राइट? So 10 rupees equal to 1000 पैसे. In 1000 पैसे, how many interest or how much interest you are getting? 25 पैसे or not? Right. For 1000 पैसे, this bank is giving you 25 पैसे interest. अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है? इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज. परसेंटेज मींस इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू 100 और नॉट? टेल मी एवरीवन. परसेंटेज मतलब याद है ना, it should be with respect to 100. Percentage means with respect to 100. रोहन आई स्ट्रेन कर रही है. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 100 होना चाहिए. सो कैन आई टेक हियर 100 फॉर 100 पैसे? हाउ मच इंटरेस्ट आई एम गेटिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो दिस विल बी योर 100 into 25 unitary method divide by 1000. 0 0 0 0 will get cancelled out. This will be 25 by 10. I can say it is 2.5%. Rate of interest is 2.5%. Everyone, ये पता चला बस. और पर एनम तो हमने साइड पे ही रखा था, तो पर एनम एज इट इज रहेगा. एवरीवन इजी? ओके, यहाँ पे बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग टर्म्स में दिया गया था. ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, now question number 5, it is same as I think question number 5 of in class exercise. ये रहा, yes same, कि अगर आपका डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 1.5 year at 10% per annum when compounded annually and semi annually. मैंने वो टाइम पे भी आपको बोला था, जस्ट अमाउंट चेंज है. वहां पे आपको 8000 दिया गया था, यहाँ पे आपको पूछा है शायद 10,000 के लिए. ओके, हाँ 32,000 के लिए, और 12% डिफरेंस है. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट that Arif would have to pay on taking a loan of 32,000 principal, rate of annum percent, 1.5 year. If it is compounded annually, compounded half yearly. Compounded half yearly के लिए direct formula, compounded annually के लिए आप कैसे करोगे? Whenever your time period is given to in fraction for first 1 year and then plus half year. Okay, it is same as in class exercise question number 5. Only just values are different. So can you try this one more time, जिसको भी डाउट था? ओके, 1 ईयर के लिए आपको अमाउंट फॉर्मूला यूज करनी है. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, राइट, फॉर सेमी कंपाउंडेड एनुअली. फॉर हाफ ईयर के लिए ये अमाउंट को आप ले लोगे प्रिंसिपल एंड यू हैव टू अप्लाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. देन यू हैव टू अप्लाई टोटल अमाउंट लाइक दैट, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल.
सो क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेम एज योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको देख के आप वापस ट्राई करें। अब आपका बच्चा है क्वेश्चन नंबर 8 ओनली, राइट, होमवर्क में। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन नंबर 8 क्विकली। Okay, can you see this question number 8 on screen, everyone? Can you see this question number 8 on screen? Now, अब यहाँ पे आपको पूछा गया in what time will rupees 4,000 amount to 5290? This is your principal, will be amount to this at 15% per annum. Rate of interest is 15% per annum, and it is compounded annually. तो normal formula आपको use करनी है, principal 1 plus r by 100 to the power n. But आपको यहाँ पे time period find करना है, that is n. So it is same as, हाँ, time आपको यहाँ पे find करना है. Yes, anyone is unmuted? Right? तो ये आपको फाइंड करना है, तो इट इज सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 8 और नॉट, जहां पे हमने यहाँ पे 2n फाइंड किया था। एवरीवन, isn't it your same as क्वेश्चन नंबर 8 इन क्लास एक्सरसाइज? ओके, मैं आपको एक क्विकली दिखा देता हूं, आप उसी तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। आई वॉन्ट टेक योर मोर देन 1 मिनट, अभी मैं तुरंत कर देता हूँ, फिर हम अटेंडेंस लेके सेशन एंड करेंगे। सो 5290 इक्वल टू 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 बाई 100, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? 5290 डिवाइड बाई 4000 और नॉट, ये कैंसल, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इजंट इट 5 बाई 20, और 5 4 जा 20, नहीं वेट, कुछ गलती कर दी, 5 3 जा 15 ना, 3, okay, and this is 5 2 जा 10, so 3 by 20. Now if I take LCM, 20 into 1 20, 20 plus 3 23 by 20 to the power n। चलो 400 को कंपेयर करो स्टूडेंट्स, 400 आपका 20 का कौन सा पावर होगा? 400 is 20 square or not? 400 is 20 square, isn't it? Okay, now 529 आपका क्या हो जाएगा? 529 is 23 स्क्वायर, डेफिनेटली वो 23 का स्क्वायर होना चाहिए। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट आप डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, देन यू विल गेट फॉर न्यूमरेटर कि न्यूमरेटर उसका उतना स्क्वायर होगा या नहीं। ओके, साफवान ऐसा सपोर्ट नहीं लेना है। ओके, आप भी ऐसे हाइट पे रखना मोबाइल को नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तो साफवान एंड पीयूष, जस्ट आप मोबाइल को हाइट पे रखना नेक्स्ट टाइम, कुछ एक बुक्स का बंच बना लो, उसके ऊपर रखो। सो ये चीज पता चली एवरीवन, राइट? So isn't it your 23 by 20 whole square is equal to 23 by 20 to the power n? So what will be value of n? Isn't it n equal to 2 years? You can tell me yes if you agree. क्या n आपका 2 हो जाएगा? Yes, sir. Easy. So this is it for today's class. आज के क्लास में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, राइट? चैप्टर नंबर 1 to 10 आपकी 1 to 8 आपके एग्जाम में, तो नेक्स्ट वेडनेसडे और फ्राइडे हम क्या करेंगे? अब हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 to 4 तो आपके साइकिल टेस्ट 1 में हो गए थे, तो अब आपके पास चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर वेडनेसडे रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 5 and 6, एंड फ्राइडे रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 7 and 8। ओके, सो रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन हम साथ में लेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ हाँ, डेफिनेटली रोहन, आप आरडी शर्मा के डाउट भेज सकते हो, जो आरडी शर्मा कर रहे हैं अपने अपना डाउट भेज दें, एंड प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस। हाँ, यस Sir, on Friday we should join at 8 or 10:30, sir. अभी एवरीडे 8 मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 to 9 आपका टाइम होगा, बट वो आपका 8:15 to 9:15, 8:10 to 9:10 रेडी हो सकता है। सो वी विल टेक जस्ट 10 minutes to 15 minutes अलाउंस। इज इट क्लियर एवरीवन? और शैल आई कीप इट परमानेंटली फ्रॉम 8:15 to 9:15? हाँ, यस समर्थ, आप कंसेप्ट चेक आउट भी पूछ सकते हो। ओके, नाउ गिव मी नेम ऑफ एब्सेंटीज। कौन कौन एब्सेंट है यहाँ पे एवरीवन? जल्दी जल्दी, चलो। एक तो प्रवीण, क्विकली। नेक्स्ट, अमृता स्टार्टिंग में थी, अभी है क्या? अमृता, आर यू देयर?